سب سے پہلے بات کریں گے اے آئی جی نواب شاہ غلام نبی میمن نے انکشاف کیا ہے کہ تفتیش کے دوران اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ صحافی عزیز میمن کو قتل کیا گیا. ان کی موت طبعی نہیں تھی. عزیز میمن کے قتل کا ماسٹر مائنڈ مشتاق سہتو ہے. نذیر سہتو نے بھی اپنے جرم کا اعتراف کر لیا ہے. نواب شاہ میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے اے آئی جی نواب شاہ غلام نبی میمن نے کہا کہ ملزمان نے خود کو چھپانے کی بہت کوشش کی لیکن قانون کی گرفت سے نہ بچ سکے. تفتیش کے دوران تمام اداروں نے مکمل تعاون کیا. قتل کیس میں اب تک 3 ملزمان کو گرفتار کیا جا چکا ہے. مزید 5 کو گرفتار کرنا ہے. اعترافی بیان کے بعد ملزم نذیر سہتو کو جوڈیشل اور دیگر 2 ملزمان کو 1 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا گیا. صحافی عزیز میمن کی لاش 16 فروری کو مہراب پور کی نہر سے ملی تھی. آگے بڑھتے ہیں. آپ کو بتائیں وزیر اعظم کے معاون خصوصی شہباز گل نے کہا ہے کہ 13 مئی کو شوگر انکوائری کمیشن نے وزیر اعلیٰ سندھ کو انکوائری کے لیے بلایا. وزیر اعلیٰ سندھ حاضر نہیں ہوئے اور نہ ہی کوئی جواب دیا. انہوں نے کہا کہ کمیشن نے وزیر اعلیٰ سندھ سے 4 ارب سے زائد کی سبسڈی کے بارے میں سوال کرنے تھے. شہباز گل کا یہ بھی کہنا تھا کہ سندھ حکومت نے اومنی گروپ کو تقریباً 9 ارب روپے کی سبسڈی دی. اومنی گروپ کی 8 شوگر ملز نے یہ سبسڈی 2015 سے 2018 کے دوران لی. وزیر ریلوے شیخ رشید احمد کا کہنا ہے کہ 1 جون سے مزید 10 مسافر ٹرینیں چلا رہے ہیں جس کے بعد کل سے 142 مسافر ٹرینوں میں سے 40 ٹرینیں چلنا شروع ہو جائیں گی. لاہور میں جیو نیوز کے نمائندے امین حفیظ سے خصوصی ٹیلی فونک گفتگو میں شیخ رشید نے بتایا کہ ٹرینوں کو طے شدہ SOPs کے تحت چلایا جائے گا اور مسافروں کی سہولت کے لیے انٹرنیٹ کے ذریعے بکنگ کے ساتھ ساتھ بکنگ دفاتر بھی کھلے رہیں گے. ان کا کہنا تھا کہ وہ وزیر اعظم عمران خان کے مشکور ہیں جنہوں نے 40 ٹرینیں چلانے کی اجازت دے دی. ٹرینوں کی بندش سے ریلوے کو ماہانہ منفی 5 ارب روپے کا نقصان ہو رہا تھا. کورونا کی روک تھام کے لیے بیجنگ سے امدادی سامان لے کر PIA کا خصوصی طیارہ پاکستان روانہ ہو گیا. چین میں پاکستانی سفیر نغمانہ ہاشمی کا کہنا ہے کہ بیجنگ سے آئے امدادی سامان میں ایکس رے مشینیں، ماسک، سکینرز اور دیگر اشیاء شامل ہیں. اس موقع پر پاکستانی سفیر کی جانب سے بے احتیاطی نظر آئی. انہوں نے ماسک نہیں پہنا. سماجی فاصلے کے اصول کو بھی نظر انداز کرتے ہوئے چینی حکام سے ہاتھ بھی ملایا. بات کریں گے کورونا وائرس کے حوالے سے. کورونا کے خلاف فرنٹ لائن پر لڑنے والے سرکاری اسپتالوں کے کئی ڈاکٹرز کورونا وائرس سے متاثر ہوئے ہیں. لاہور کے نجی اسپتال کی لیڈی ڈاکٹر ثنا فاطمہ کورونا سے انتقال کر گئیں. گجرانوالہ میں سینئر ماہر نفسیات ڈاکٹر نعیم اختر کورونا سے جنگ ہار گئے. خیبر پختونخوا میں ایک اور ڈاکٹر جان کی بازی ہار گیا. افغانستان سے تعلق رکھنے والے ڈاکٹر خانزادہ خیبر ٹیچنگ اسپتال میں انتقال کر گئے. کوئٹہ میں BMC ٹراما سینٹر کے انچارج ڈاکٹر زبیر احمد بھی جان سے گئے. فیصل آباد کے الائڈ اسپتال اور سول اسپتال کے 18 ڈاکٹرز کورونا کے مریض بن چکے ہیں. ینگ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن کا کہنا ہے کہ کئی ڈاکٹرز گھروں میں قرنطینہ ہیں. اہل خانہ بھی متاثر ہو سکتے ہیں. متاثرہ ڈاکٹرز کے لیے اسپتال میں الگ قرنطینہ قائم کیا جائے. آرتھرائٹس کے مرض میں استعمال کیے جانے والے انجیکشن کا کورونا کے مریضوں پر ٹرائل شروع کر دیا گیا. وزیر صحت پنجاب ڈاکٹر یاسمین راشد کہتی ہیں کہ اس انجیکشن کے استعمال سے کورونا سے شدید متاثرہ 10 مریض صحتیاب ہو چکے ہیں. وزیر صحت پنجاب ڈاکٹر یاسمین راشد نے لاہور میں جیو نیوز کو بتایا کہ کورونا کے مریضوں پر آرتھرائٹس کے انجیکشن کے استعمال سے مثبت نتائج سامنے آئے ہیں اور اب تک 10 مریض صحتیاب ہو کر گھروں کو جا چکے ہیں. ان کا کہنا تھا کہ کورونا وائرس کے شدید حملے پر یہ انجیکشن 24 گھنٹوں میں 2 بار لگایا جاتا ہے. انہوں نے کہا کہ اس کی قیمت 1,20,000 روپے کے قریب ہے. سرکاری اسپتالوں میں یہ انجیکشن دستیاب ہیں اور مریضوں کی حکومت کی جانب سے مفت دیے جا رہے ہیں. کورونا ایڈوائزری کمیٹی پنجاب کے وائس چیئرمین ڈاکٹر اسد اسلم کہتے ہیں کہ مختلف اسپتالوں میں اس انجیکشن کا ٹرائل جاری ہے جبکہ متعدد مریضوں کو یہ انجیکشن دے کر وینٹیلیٹر پر جانے سے بچایا جا چکا ہے. امریکہ میں پولیس کے ہاتھوں سیاہ شہری کی ہلاکت کے خلاف احتجاج. پولیس نے ریاست منیسوٹا میں مظاہروں کو کوریج کرنے والی امریکی نشریاتی ادارے CNN کی ٹیم کو حراست میں لے لیا. میڈیا رپورٹس کے مطابق CNN کے رپورٹر کو پولیس نے اس وقت حراست میں لیا جب منیسوٹا میں جاری احتجاجی مظاہروں کی لائیو کوریج جاری تھی. پولیس نے شناخت کرانے کے باوجود رپورٹر اور ٹی وی کی ٹیم کو ہتھکڑیاں پہنائیں. امریکہ میں سیاہ فام شہری کی ہلاکت کے خلاف احتجاج جاری ہے. فینکس، ایریزونا، کینٹکی، میمفس، ٹینیسی تک یہ احتجاج پھیل چکا ہے.
violence is taking place. There is some action behind you. Hang on. बिलवास्ता या बिलावास्ता कई लाख अफराद को रोज़गार का ज़रिया तेल कंपनीज को तारीख की बदतरीन माली नुकसानात का सामना है। इस हवाले से अली इमरान सैयद ने एक रिपोर्ट तैयार की है, आपको दिखाते हैं। अगर आलमी मंडी में तेल की कीमतें कम हो रही हों तो मार्केटिंग कंपनीज और रिफाइनरीज के पास मौजूद अरबों लीटर्स तेल ज़ख़ीरों पर इन्हें बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है। कीमतें बढ़ने के दौरान फ़ायदा भी ये कंपनीज ही उठाती रही हैं, लेकिन हालिया अरसे में तेल कारोबार पर दो धारी तलवार चल गई। कीमतें लुढ़कती हुई तारीख की रिकॉर्ड कम तरीन सतह पर आ गईं, जबकि कोरोना के सबब पेट्रोल पंप्स की सेल महदूद रही और रही सही कसर रुपया गिरने के सबब कंपनीज को डॉलर्स भरने के लिए ज्यादा रुपए देने पड़े। मुल्की रिफाइनरीज को इस दौरान अलग नौयत के चैलेंजेस का सामना रहा। मुल्क में रिफाइनरीज को डीरेगुलेट किया जाए, मगर उसके साथ उनको इतनी प्रोटेक्शन दी जाए कि वो इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स का मुकाबला कर सकें और मुल्क में इम्पोर्ट की सिर्फ उस हद तक इजाज़त दी जाए जिस हद तक कि ये रिफाइनरीज करने के बाद जो डेफिसिट प्रोडक्ट्स बचते हैं या मुल्क में जो ज़रूरत रहती है वो सिर्फ उसको इम्पोर्ट करने की इजाज़त दी जाए। एक तखमीने के मुताबिक हालिया अरसे के दौरान ऑयल मार्केटिंग कंपनीज और रिफाइनरीज को लगभग 100 अरब रुपए का नुकसान हुआ है। बड़े नुकसानात के सबब तेल कंपनीज को रकम की शदीद किल्लत का भी सामना है। मुल्क की इस स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्रीज के कुछ पंटर्स समझते हैं कि इम्पोर्ट अदायगियों पर ज़ायद डॉलर्स देने का मसला जो हाल में हल हुआ है, अगर इसमें गुज़िश्ता साल का अरसा भी शामिल कर लिया जाए तो ऑयल इंडस्ट्री का फूला हुआ सांस बहाल हो सकता है। कैमरामैन अदनान हैदर के साथ अली इमरान सैयद, जियो न्यूज़, कराची। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस काजी फायज़ ईसा के खिलाफ सदारती रेफरेंस का मामला। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी शहजाद अकबर मिर्ज़ा के बारे में 15 सवालात उठा दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट में सदारती रेफरेंस के खिलाफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने एक और जवाब जमा करा दिया। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बराए एहतसाब और चेयरमैन एसेट रिकवरी यूनिट शहजाद अकबर मिर्जा के हवाले से सवालात उठा दिए। जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने सवाल उठाया है कि शहजाद अकबर मिर्जा को किसने मुलाजमत पर रखा, क्या एसेट रिकवरी यूनिट के चेयरमैन के ओहदे का इश्तिहार दिया गया, क्या दरखास्तें तलब की गयी, क्या शहजाद अकबर मिर्जा का इंतखाब फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए हुआ। जस्टिस काजी फायज़ ईसा का कहना है कि अगर इन पहले 3-4 सवालात के जवाब ना में हैं तो सवाल ये उठता है कि इन्हें कैसे मुलाजमत पर रखा गया। जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने अपने जवाब में ये भी सवाल उठाया है कि चेयरमैन एसेट रिकवरी यूनिट शहजाद अकबर मिर्जा की मुलाजमत की शराइत और जवाबित क्या हैं। क्या शहजाद अकबर मिर्जा पाकिस्तानी हैं, गैर मुल्की है या दोहरी शहरियत रखते हैं। क्या एसेट रिकवरी यूनिट की कानूनी हैसियत ना होने पर चेयरमैन पर खर्च किया गया हर रुपया अवाम के पैसे की चोरी नहीं है। जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने जवाब में कहा कि किसी की परछाई शहजाद अकबर मिर्जा ने सुप्रीम कोर्ट के जज और इसके अहल खाना के बारे में तो गैर कानूनी तौर पर मालूमात इकट्ठी की, लेकिन अपने और अपने खानदान के बारे कुछ जाहिर क्यों नहीं किया। शहजाद अकबर मिर्जा का इनकम टैक्स और वेल्थ टैक्स स्टेटस क्या है, कब अपने इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल कराना शुरू किए। शहजाद अकबर मिर्जा ने अपनी जायदाद और असासों और बैंक अकाउंट्स के बारे क्यों नहीं बताया, अपनी बीवी और बच्चों के नाम क्यों जाहिर नहीं किए। शहजाद अकबर मिर्जा की बीवी और बच्चे किस मुल्क की शहरियत रखते हैं, इनकी जायदादें पाकिस्तान में हैं या बैरून मुल्क। क्या चेयरमैन एसेट रिकवरी यूनिट शहजाद अकबर मिर्जा ने अपनी बीवी और बच्चों की जायदादें अपने गोशवारों में जाहिर की हैं। जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने अपने जवाब में कहा है कि फुल कोर्ट की साख को मजरू करने की कोशिश और अदालती तौहीन के पीछे साबिक अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर खान, वफाकी वजीर कानून फरोग नसीम और शहजाद अकबर मिर्जा की तिकोन है। शरह दस्तूर से नुमाइंदा खसूसी अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। महकमा मौसमियात ने आज से मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में गैर मामूली बारिशों की पेशगोई की है। आंधी और गरज चमक के साथ बारिशों का ये सिलसिला मंगल तक जारी रहेगा। इस दौरान कई मकामात पर जालाबारी का भी इम्कान है। नवीन अली की रिपोर्ट। गुज़िश्ता हफ्ते के दौरान पंजाब समेत मुल्क के मैदानी इलाके शदीद गर्मी की लपेट में रहे। कई इलाकों में दर्जा हरारत 45 दर्जा सेंटीग्रेड से ऊपर चला गया था। गुज़िश्ता रात से मौसम ने करवट ली है और लाहौर समेत पंजाब भर में खुशगवार हवाएं चल रही हैं।
जिस की वजह से दर्जा हरारत में कमी आ गई है। लाहौर में कम से कम दर्जा 24 और ज्यादा से ज्यादा 36 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। महकमे ने पेशगोई की है कि आज से मंगल तक पंजाब भर में खुसूसन चावल और कपास की काश्त के इलाकों में गैर मामूली आंधी और गरज चमक के साथ बारिशों का इम्कान है। इस दौरान मुख्तलिफ इलाकों में शालाबारी भी हो सकती है। महकमे ने काश्तकार हजरात से कहा है कि हालिया बारिशों को मद्देनजर रखते हुए फसलें काश्त करें। कैमरामैन आमिर बाजवा के साथ नवीन अली, जियो न्यूज़, लाहौर। कराची में आइंदा 2 रोज़ में बारिश का कोई इम्कान नहीं है। महकमा मौसमियात के मुताबिक मगरबी हवाओं का सिलसिला आज शाम या रात से पाकिस्तान में दाखिल हो जाएगा। मगरबी हवाओं का सिस्टम खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में बारिश बरसाएगा। देखिए, मगरबी हवाओं का सिलसिला जो आज शाम या रात में दाखिल होगा वो नॉर्थ पाकिस्तान यानी KP, कश्मीर और GB वगैरह में कुछ बारिश का सबब बनेगा। कल से ये सिलसिला फिर ईस्ट बलूचिस्तान, अपर सिंध के इलाके जो हैं, दादू, लाड़काना, जैकोबाद, शिकारपुर, घोटकी वगैरह, इन इलाकों में गर्दो गुबार के साथ आंधी चलेगी और इन इलाकों में बारिश हो जाएगी। फिर परसों भी इन इलाकों में बारिश होगी। तो कराची में फ़िलहाल किसी ख़ास बारिश का इम्कान नहीं है अगले 3-4 दिन में। सानह बल्दिया लियारी गैंग वॉर के उज़ैर बलोच और निसार मोराई की JIT पब्लिक ना करने पर वफाकी वज़ीर अली ज़ैदी ने चीफ सेक्रेटरी सिंध के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट में तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि JIT में जिनके नाम हैं उनमें से कई अफराद असम्बलियों में बैठे हैं। कई नामजद पुलिस अफसरान ताहाल ड्यूटी पर काम कर रहे हैं। सिंध हाई कोर्ट ने जनवरी में तीनों अहम JITs पब्लिक करने का हुक्म दिया था। अदालती हुक्म के बावजूद चीफ सेक्रेटरी सिंध ने तीनों अहम JITs पब्लिक नहीं की। अदालती हुक्म पर अमल दरामद न करने पर चीफ सेक्रेटरी के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। सानह बल्दिया में गिरफ्तार मुल्ज़िमान ने अहम तरीन इंकशाफात किए थे। लियारी गैंग वॉर के सरगना उज़ैर बलोच ने भी दहशतगर्दी और दीगर संगीन वारदातों में अहम शख्सियात के मुलविस होने का एतराफ़ किया था। मैंने जब कोर्ट में गया 10 अक्टूबर 2017 में, तो हमारी क्या डिमांड थी? उज़ैर बलोच की और निसार मुराई की, यहाँ तो सरदारी को भी लोग साफ बोलते हैं, और बल्दिया फैक्ट्री फायर की जो JITs बनी है वो पब्लिक की जाएं। JIT का जो जिक्र होता है मीडिया में और जो कॉपीज सोशल मीडिया में सर्कुलेट हो रही हैं, अनऑफिशियल कॉपीज, उसमें ऐसे बहुत सारे लोगों का नाम है जो आज भी सियासत कर रहे हैं, आज भी असेंबलियों में बैठे हैं। तो या तो मुझे कह दें कि वो JITs झूठी थी,